Hello everyone, welcome back to Knock Knock Your Education, and I hope all of you are doing good. So today we have to start a new topic. The topic is change of variable, and but before starting that, let me just discuss one question that I gave all of you as a homework, and most of you have answered it correctly. So let me just discuss that. The question that I gave you was, I have given you two curves, y is equals to x square, a parabola, and y is equals to x cube, and I asked you to find the area that is being bounded in between both these curves. So let's just discuss this. So what we will do, we will first try to draw the region of integration. So what is going to happen over here? This is going to be our y is equals to x cube. Fine. This one is our y is equals to x cube. Now one thing is very much clear from here, and what is that? Yeah, that y is equals to x square and y is equals to x cube, they intersect somewhere. Okay, so let me just find that point of intersection. So I took x common and I am getting x square common, x minus 1 equal to 0. That means x is equals to 0 and x is equals to 1. And you keep this x either in this curve or in this curve. Corresponding to x is equals to 0, you are getting y is equal to 0, and corresponding to x is equals to 1, you are getting y is equals to 1. It means 0, 0 and 1, 1 are their point of intersection. So suppose here we have x is equals to 1 and they are intersecting at x is equals to 1. But in this question, few of the students have faced a problem. What problem? This is a parabola. Okay, so y is equals to x curve is going like this way, or it is going like this way. They might have faced this problem, right? They could not understand from where the curve is passing. So for this, what you can do, you know that both the curves are passing and they are intersecting at 0, 0 and 1, 1. It means at 1, 1 and at 0, 0, one of the curve is going to be above of the another curve. So do one thing. When your x is between 0 to 1, okay, take x is equals to 1 by 2. 1 point. I told you, na, go through your basic concepts. You will never, do any mistake. So y is equals to x square is giving you what? Y is equals to 1 by 4. And y is equals to x cube is giving you what? 1 by 2 cube. It means 1 by 8. So obviously, your denominator part is more over here. So it means this value is going to be less than 1 by 4. I hope now you can understand, right? So this is somewhere going to be your 0.1 and this is going to be 0.2. Okay, so obviously we got this. It means what? It means y is equals to x cube curve is going to be what? In between 0 to 1, it is giving us a less value as compared to y is equals to x square. So y is equals to x square will be above the curve y is equals to x cube. And now when your x is greater than 1, choose x is equals to 2. Your y is equal to x square gives you 4 and y is equals to x cube will give you 8. So it means x cube curve is above the curve y is equals to x square. So now what we will do? We just understood that x cube is going to be below y is equals to x square, right, whenever we are drawing the curves. So let's just draw the curve. So what we will do, we'll first remove this curve, okay, and then what we will do, we will draw y is equals to x square. This is our y is equals to x square. Now at x is equals to 1, we know that what, see here, your x cube is going to be lie below the curve y is equals to x square. So below the curve, it means the curve will go like this. Okay, let me just draw it once more like this. Now you see, in between 0 to 1, if you are, this, if you are, what you are doing, you are drawing a x is equals to 1 by 2 line. This curve will give you what? 1 by 8, and this curve will give you 1 by 8, which is obviously what? Smaller than 1 by or greater than 1 by 8. Fine. So let me just draw it with another color so that you can get an idea that what is happening. Yeah, this is your y is equals to x cube. Okay, so hope now it is understandable. So obviously this is the region that is being bounded by both the curves. So what we have to do now, we have to just find the area. So we'll apply the formula for the area,
and in this case also you can draw a strip either parallel to x-axis or parallel to y-axis. It is up to you, because the whenever you are going to shift that strip, it is going from one curve to the other curve. The curve remains same whenever you shift the your strip. ठीक है, either parallel to x-axis or y-axis. So what you did, you draw a strip which is parallel to y-axis. It is going from where to where? From y is equals to x cube to y is equal to x square. So your y is going from bottom to top. Y is equals to x cube to x square, and then going from left to right, your x is going from 0 to 1, that is the leftmost point and the rightmost point. So you have to solve it. So area is going to be what? 0 to 1 y, and then it was going from x cube to x square dx. So what it came out to be? 0 to 1 x square minus x cube dx. It came out to be x cube by 3, and then it is came out x to the power 4 by 4, 0 to 1. Now we will solve it. It is 1 by 3 minus 1 by 4, so that came out to be what? 1 by 12. So the area is 1 by 12 for this question. Okay, so now we'll start our new topic. So the next topic is change of variable. Okay, पहले इस टॉपिक से थोड़ा सा क्वेश्चन जो थे वो एग्जैक्टली जो कंसेप्ट है उसके बिहाफ पे आते थे, बट अभी क्या हो जाए कि चेंज ऑफ वेरिएबल पे जो क्वेश्चन आता है वो आपका पोलर फॉर्म से ही आता है. सो इसलिए वी विल बी फोकसिंग ऑन पोलर फॉर्म अ लिटिल मोर. ओके, सो व्हाट इज़ दिस चेंज ऑफ वेरिएबल? नाम खुद में ही सारी चीज़ें कह रहा है कि we are going to change the variables with respect to which we were integrating initially. Okay, so mathematically what I will say, that suppose f of x comma y was your function and you were integrating it, so it was not possible for you to integrate with respect to x and y. Okay, just like in change of order of integration, the form just helped us to solve a integration which was a little complicated earlier. तो सेम काम चेंज ऑफ वेरिएबल का भी है. दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन सॉल्विंग अ इंटीग्रेशन विच इज़ नॉट ईजिली सॉल्वेबल फॉर अस. सो व्हाट वी आर डूइंग with respect to x and y, it is not possible or it is not easy to integrate, so we are changing the variables. Instead of x and y, we will change the variables. How? We will just take some transformations. Okay, that we will choose x as a function of u and v, two independent variables. Similar case we will be doing with y. And now what we will do, we will keep all the things and we will replace x and y by what? U and v. Okay, this came out to be this, and then here we will be keeping mod j, and this is going to be your du dv. Okay, let me just write down mod j, and this is your du dv. So see, initially we were integrating with respect to x and y, but now we are integrating with respect to the independent variables u and v. It means what? We have changed the variables. That is why the name is being given to it, change of variable. But the extra term that we will be getting while changing the variables is your mod j. What is your mod j? This is actually called as Jacobian. Jacobian value, how do we define? We define del x by del u. Then here we are getting del x by del v, then del v, del y by del u, and del y by del v. Okay, so this is Jacobian value. Once we will solve it, then we will take the modulus value of it and then we'll keep it here. Okay, but sometimes what happens, it is not possible for us to find out this value. So what we are going to do, we are going to find out the reciprocal of what? We will do here del u by del x. Then we will be finding here del u by del y, then this is your del v by del x and del v by del y. This way also we can go for our Jacobian. Okay, both the terms will give us the same value, because sometimes it will not be easy to keep x in terms of u and v, keep y in terms of u and v, because in those questions we will be getting u and v in terms of x and y. Okay, then we will use this criteria. So now what we will do, we will do some questions so that we can develop a better understanding about that. But before that, all of you have watched the previous lectures on area and on change of order of integrations also. So what I told you over there is that a polar form was given, a question was given to us
in Cartesian form and we have changed it into polar form, right? So I told you that instead of dx dy, in place of dx dy, we will keep r dr d theta. Okay, so here only I am covering your polar form. So this is the criteria that we do. That means most of you have told you that in place of dx dy keep r dr d theta. So see, in this case also what is happening, you were being given the variables x and y, but you have changed the variables from where to where, from r to theta, right? So instead of integrating with respect to x and y, you are integrating now with respect to r and theta. What does it mean? That you have changed the variables. That means what? Polar form is one of the sub case of the change of variable. So how do you do the polar form? You took x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta. See the same thing, you considered x as a function of r and theta and y also the same case. Now you go for the Jacobian part, that is your del x by del r, then del x by del theta, del y by del r and del y by del theta. Now what you will do? Del x by del r is your what? Cos theta. Then del x by del theta is your minus r sin theta. Next what you are getting, del y by del r is your cos theta and then del y by del theta is your r cos theta. Now you multiplied them, r cos square theta plus what you are getting. Okay, just give me 1 minute here, because you are doing del y by del r, so it should be only sin theta, sorry. So this came out to be r sin square theta. Now you will take r common, so sin square theta plus cos square theta is going to be 1 by the trigonometrical identity. So what is the value of Jacobian? R. So once you were changing the variables, what you might have done? Mod of j dr d theta, and since your r is obviously greater than 0, so modulus value will not make any difference. It came out to be r dr d theta. तो अब तक जो हम लोग रट रहे थे या जिन लोगों को नहीं पता था, एक्चुअली keeping r dr d theta in place of dx dy is actually the value of the Jacobian that we substitute in change of variable concept. Okay, and this, remember this thing also, that your this j value is non-zero. Okay, this j value is obviously non-zero because once it will be 0, there won't be anything to do in this integral. And how this came out to be non-zero, actually that concept depends or lies in this part, that we are choosing x and y like this, that their Jacobian becomes non-zero. And why we are choosing there is a concept of integral surface and all that you will learn in your masters or even in your graduation when you will study the concept of the integral surface and all that. Okay, but for time being you can understand that this Jacobian value is always going to be non-zero. Even if you do not pay attention to that and solve a question of change of variable, it will automatically come to be non-zero. Fine. So now let's proceed to some questions, but before moving to polar form, giving you few questions on polar form, I'll give you few questions which are basically on change of variable itself, then we will go for your polar form. Okay, so the first question that we will be doing is, suppose you have been given a integration x plus 2y, then you have dx dy, and the region D is being bounded by the curve y is equals to x plus 3, then you have y is equals to x minus 3, y is equals to minus 2x plus 4 and y is equals to minus 2x minus 2. Okay, so this is our question. So चेंज ऑफ वेरिएबल की एक खास बात ये है कि ये हमको दूर से ही नज़र आ जाता है 80% केसेस में. ओके, 20% केसेस में हमें ये समझना पड़ता है, बट मोस्टली ये हमको दूर से ही दिख जाता है. कैसे? चेंज ऑफ वेरिएबल की एक खास बात ये है कि यहाँ पे आपको कुछ कर्व्स जो है ना वो सिमिलर नज़र आएंगे. जैसे अगर आप ये पहले दो कर्व देखो तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3. कैन यू सी समथिंग? देयर इज अ सिमिलैरिटी. y माइनस एक्स हमको कॉमन दिख रहा है. ठीक है. इन अ अदर वे ऑल्सो see these two curves, y plus 2x is equals to minus 2 and y plus 2x is equals to 4. Now you can see that both these two curves are also looking out to be similar. This will give you a hint that this question is from what? From change of variable. Now you imagine one thing. If you would have solved it in this Cartesian form only,
you would have drawn 4 lines. Okay, you would have drawn 4 lines. How? This is your y plus x, y is equals to x plus 3. It means your x is going to be minus 3 and y is going to be 3. I am just giving you a rough idea. Okay, then what is happening? Y is equals to x minus 3. It means x is going to be your 3 and y is going to be your 3. So a line will go like this. Then here you have y is equals to minus 2x plus 4. It means what? Your y is going to be 4, right? And your x is going to be what? Your x is going to be 2. Fine, x came out to be 2. Here it was 3, so x it will 2 and y 4. So it will go like this somewhere. Fine. And then what is happening? Here y is equals to your minus 2 and your x is coming out to be 1. Somewhere like this. So see, you have to find a region that is being bounded by both these 4 lines, and then once you will draw the strip which is either parallel to x axis or y axis, you will see that your region is being divided into multiple parts, because whenever you shift the strip, it is coming from one curve to another curve and those curves are changing. So it will take a lot of time and even you can do mistake while solving the question. This is the beauty of the change of variable, that it has reduced our work and made the calculation very simple. So what we will do over here, we will choose y minus x is equals to u and y plus 2x is equals to v. Whenever your curves looks to be similar, choose that term is equals to u or v. And it's not the case that I have chosen y minus x is equals to u. So you also have to choose. You can choose y minus x is equals to v also and y plus 2x as u. Fine. Now what we will do? We have to find out the Jacobian also. Okay, so it means what we have to do? We have to find out the value of x in terms of u and value of y in terms of u and v. So what we will do? We will just multiply the first equation by 2 and we will add. Okay, so 2y plus y is going to be 3y and this is your 2u plus v, because x will get cancelled out. So you are getting y as what? 2u plus v by 3. And now you keep x is equals to y minus u. Y is your 2u plus v by 3 and minus u. So you got x also what? X you are getting y minus u by 3. So this is your x and this is your y. Now you want to find out the Jacobian. I have already told you, del x by del u, that is minus 1 by 3, del x by del v, minus 1 by 3, del y by del u, 2 by 3. Okay, similarly we will find del v by, okay, del y, sorry, del y by del v. So that will be 1 by 3. Now once you solved it, what you are getting? Minus 1 by 9, then minus 2 by 9, minus 3 by 9, which came out to be minus 1 by 3. Okay, now we are just going to write down the solution. Here we were having x plus 2y dx dy. Okay, so we have to convert everything in u and v. So your x plus 2y you have to find out. You see, you add both these equations. On adding both these equations, we are getting what? X plus 2y is equals to u plus v. And see the term, we have x plus 2y over here. So what we will write down? U plus v. Okay, and then modulus of Jacobian we have to keep. Jacobian value was minus 1 by 3. It is 1 by 3 because we have to keep what? We have to keep the modulus value. And you see here, y minus x was your u. So u is equal to minus 3 to minus, and here u is equals to 3. And you kept y plus 2x as v. So v is equal to minus 2 to v is equals to 4. So see, the region that was too complicated for you, now it is so easy to draw it. How? Your u is minus 3 to 3. Suppose this is your u. So u is from minus 3 to u is equals to 3. Then your v is from where to where? V is from minus 2 to 4. So this is your minus 2, v is equal to minus 2, and this is your v is equals to 4. So the region which was getting too much complicated earlier, now it became so simple. So you can keep the limit u from minus 3 to 3, okay, as we are getting here, and v from minus 2 to 4. V is from minus 2 to 4. And we can solve it now. 1 by 3, you keep minus 3 to 3, okay, and then here you are getting v from minus 2 to 4, and this is your u,
du dv. Okay, I just want to tell you one thing. How can you make your complications of calculation a little easier? You see the first term, it is containing u. Okay, and limit of u is from -3 to 3 and u is going to be an odd function. तो आप v के रिस्पेक्ट में कर भी लो तो भी आंसर ये क्या देगा, जीरो देगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा है -a to a f of x dx is going to be equal to 0 whenever your f of x is what, is an even function. तो अब सिर्फ दूसरे वाले इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो वो हम कैसे करेंगे, u को हमने -3 to 3 ही रखा, ठीक है. v के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, v स्क्वायर बाई 2 -2 to 4 1/3 ऑलरेडी था हमारे पास, एंड दिस इज योर dv du. सो दैट केम आउट टू बी 1/6 एंड फिर ये v स्क्वायर क्या होगा 16 -4 और अब बस u बचता है हमारे पास -3 to 3. तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 12 देन 6 एंड ये 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 3, क्योंकि हम ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 to 3 कर देंगे. फाइन, ये चला गया, आंसर कितना आ गया 12. तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 12. तो जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, चेंज ऑफ वेरिएबल की हेल्प से कैसा हो गया, बहुत आसान हो गया. एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, कि आपने y माइनस एक्स को u माना हुआ है, ठीक है, एंड आपने y प्लस 2x को क्या माना हुआ है, v माना हुआ है, ठीक है. तो एक तो जैकोबियन मैंने आपको वैसे निकाल के दिखाया, कैसे कि del x बाई del u, then del x by del v, then we got del v by del u, then del y by del v. तो बट आई विल सजेस्ट यू कि आप इन सब में एक्स्ट्रा काम मत करो. सॉल्व कर रहे हो इन दो इक्वेशंस को, x को इन टर्म्स ऑफ u एंड v निकाल रहे हो, y को इन टर्म्स ऑफ u एंड v निकाल रहे हो, बट एक्चुअली दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. आप सिंपली क्या करो, ये वैल्यू को निकाल लो, del u by del x, then del u by del y, then you got del v by del x and del v by del y. तो यहाँ पे एक काम आपका बच जाएगा. अब आप देखो, del u by del x करोगे -1, del u by del y करोगे 1, del v by del x करोगे 2 and del v by del y करोगे 1. क्या आया ये -1 -2. देखो आंसर सेम ही आ रहा है ना, और थोड़ी देर पहले हमने भी तो यहाँ से भी यही निकाला था. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एडिशनल वर्क यू सॉल्व इट दिस वे ओनली. एंड कुछ क्वेश्चंस में आपको सिर्फ यही वाला तरीका हेल्प करेगा, तो वाई नॉट टू यूज़ फॉर एवरी क्वेश्चन. Okay, so let's go to question number 2 and we will see what is our question number 2. So in question number 2 they have asked you to find out xy dx dy over the region D which is being bounded by the curves xy is equals to 1, xy is equals to 3, y is equals to 3x and y is equals to 5x. Now you see, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको चेंज ऑफ वेरिएबल का जो इम्पोर्टेंस है वो समझाया है, बट एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे. यहाँ देखते हैं, अगर हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक हम ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दूसरा हम ये ड्रॉ करेंगे. फिर हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक, एक ऐसी गई हुई है, एक ऐसी गई हुई है. अब देखो आप ये रीजन है, ठीक है. अगर आप इसको कार्टेशियन से करना चाहते हो तो तब मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है. अब आप क्या करोगे, यहाँ देखो ऐसा नहीं लग रहा है, अगर आप इसको पैरेलल टू y ड्रॉ करोगे तो ये आपका 3 पार्ट में जाएगा. नहीं करना है पैरेलल टू x भी करोगे ना तो भी आप देखो, एक आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, 3 स्ट्रिप ड्रॉ करोगे आप. कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आपको 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ रहे हैं. सो वाई टू मेक द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. और अब आपको दूर से नज़र आ रहा है, सी हियर एक्स वाई y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 5x. इसका मतलब ये टर्म आपको कॉमन दिख रही है तो आप u को लेट कर सकते हो xy. यहाँ y बाई एक्स आपको कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब v को आप लेट कर सकते हो क्या, y बाई एक्स. और अब जैकोबियन निकाल लेते हैं, और जैकोबियन के लिए अभी तो तरीका बताया, del u बाई del x हमारे पास कितना आ रहा है. अगर हम del u बाई del x निकालने जाएंगे तो व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग इज y, देन del u बाई del y करेंगे तो x आएगा. देन हमारे पास del v बाई del x करेंगे तो माइनस का y बाई एक्स स्क्वायर आएगा, एंड del v बाई del y करेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा. इसको सॉल्व करते हैं, बट मेक श्योर जैकोबियन भी हमें u v के टर्म्स में ही चाहिए, या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा u v में हो रहा है. तो हम सॉल्व करते हैं. ये क्या आया y बाई एक्स, ये क्या आ जाएगा वापस से सॉल्व करने पे अगेन y बाई एक्स. तो ये क्या आया हमारे पास, दिस केम आउट टू बी 1/2 टाइम्स y बाई एक्स. और अब आप देखो y बाई एक्स को तो हमने v लेट किया है ना, तो ये 1/2v आ गया ना जैकोबियन, बस काम हो गया. और एक्स वाई को तो हमने क्या लेट कर रखा है, ये लेट कर रखा है ये. अब आप एक चीज़ और देखो,
यहाँ से अगर देखोगे तो u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 3 आ रहा है। यहाँ से देखोगे तो v इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 5 आ रहा है। अब यूवी प्लेन में देखो काम कितना आसान हो गया। ये u इज इक्वल टू 1 है, राइट, ये u इज इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पे हमारे पास v इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ v इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। पहले जो चीज़ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, अब देखो कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो गई। ये है, अब लिमिट भी लगाओगे तो यहीं से पता चल रहा है क्या, ये देखो ये लिखा हमने एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। एक्स वाई को भी यू वी में चेंज करना पड़ेगा, वो हमें डायरेक्ट यू की वैल्यू से मिल रहा है, यहाँ यू रख दिया। जैकोबियन हमारा क्या आया 1/2v, उसको भी हमने रख दिया, और बस ये डी यू डी वी हो गया। और u की लिमिट भी हमें पता चल रही है क्या, u की लिमिट है 1 से 3, तो u की लिमिट रख दो 1 से 3। और v की लिमिट क्या है हमारे पास, v की लिमिट है 3 से 5, उसको भी रख देते हैं। अब देखो दूसरा लेक्चर या पहला लेक्चर जो डबल इंटीग्रेशन पे मैंने लिया था वो याद करो। ये फंक्शन को हम एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, u फ्रॉम 1 to 3 एंड इसको हम लिख दें क्या, 1/2 बाहर कर दें, u du। और क्या लिख सकते हैं, v फ्रॉम 3 to 5 दिस केम आउट टू बी dv/v। सॉल्व हो जाएगा ना, 1/2 देन दिस केम आउट टू बी u²/2, और ये क्या बना 1 to 3, देन ये क्या बनेगा ln v फ्रॉम 3 to 5। तो यहाँ क्या आया 1/2, देन ये बनेगा 9 - 1/2, और ये ln 5 माइनस का ln 3। यहाँ देखो आप क्या बनेगा 8, और डिनोमिनेटर में 4 तो 2 आ जाएगा, और ln 5/3 बन जाएगा। इसी को आप क्या लिख सकते हो, ln 25/9, ठीक है। तो ये है हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का। तो अब शायद आपको पता लग रहा होगा चेंज ऑफ वेरिएबल हमारे पास जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अब ये थे कुछ 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बेसिक चेंज ऑफ वेरिएबल समझाने की कोशिश करी है। और अब हम जाएंगे पोलर फॉर्म पे, और पोलर फॉर्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे हमारे पास जो dx dy है वो r d थीटा के बराबर होता है। लेकिन पोलर फॉर्म में इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये है कि हमें ये समझना है कि लिमिट्स कैसे हम निकालते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर और थीटा की लिमिट निकालना ही यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम है। तो पहले हम वो कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, देन कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे और फिर देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, एज अ क्वेश्चन देख लो या कॉन्सेप्ट देख लो, जो भी आप बोलो। ये अगर हमारे पास दिया है 0 to 1 देन 0 to x f of x, y dx dy, इससे आई होप आपको समझ आ जाएगा हम लिमिट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब सपोज इस क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है आपके पास कि भाई ये हमारे पास f of r, थीटा आ जाएगा, dx dy r dr d थीटा आ जाएगा। बस हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए भी प्रोसेस सेम है जो हमने अभी तक सीखा। लिमिट्स को आप लिख लो x = 0, x = 1, y = 0, y = x। और अब आपने क्या करना है, इनको ड्रॉ कर लेना है। दिस इज़ योर x = 0, दिस इज़ योर y = 0, ये क्या बना आपके पास y = x, और यहाँ आ गया x = 1। इसका मतलब ये रीजन है आपके पास। तो देखो आपको बस ये एंगल देखना है पहले तो एंगल आपको यहाँ से देखना है। ये क्या दिख रहा है, थीटा = 0 से कहाँ जा रहा है, आप देखो y = x लाइन π/4 का एंगल बनाती है, π/4 ये आ गया। तो थीटा की तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, 0 to π/4 जा रहा है। अब हमको बात करनी है r की लिमिट, वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उसके लिए आप क्या करते हो, ओरिजिन से, क्योंकि ये शुरू हो रहा है तो ओरिजिन से आप एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हो, ठीक है। अब ओरिजिन पे x और y दोनों कैसे हैं हमारे पास, 0 ही है ना, x भी 0 है, y भी 0 है। तो आपको ये बात तो समझ आ जाएगी कि यहाँ पे r भी 0 होगा, है ना। तो r तो 0 से शुरू हो गया। अब r गया कहाँ पे, x = 1 लाइन पे गया है, r की जो फाइनल स्ट्रिप है। x क्या होता है हमारे पास, r cos थीटा होता है, मतलब r = क्या आ रहा है, sec थीटा आ रहा है ना। तो इनिशियली r 0 से स्टार्ट हुआ और गया कहाँ पे, वही कर, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट बॉटम टू टॉप यूज़ करते थे, यहाँ पे r के लिए हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो r = कहाँ गया, वो सेक थीटा पे चला गया। तो जनरली आपको क्या होगा, r की लिमिट इन टर्म्स ऑफ थीटा ही निकल रही होगी। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थीटा की लिमिट को तो बस आपको एंगल देखना है, कहाँ से शुरू होके कहाँ एंगल गया हुआ है। आर के केस में आप स्ट्रिप ड्रॉ करोगे और इस तरीके से देखोगे कि स्ट्रिप शुरू कहाँ से हुई है और ख़त्म कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा देखो, अगर यहीं पे आपको कोई दे देता कि सपोज़ आपके पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस, कि चलो एक रीजन ही बना देती हूँ मैं, ठीक है। सपोज़ यू हैव अ रीजन
जो अभी हमने ऊपर ड्रॉ किया था ना, वैसा ही कुछ रीजन है, बस x इज इक्वल्स टू 1 की जगह हमने y इज इक्वल्स टू 1 ले लिया है। ठीक है, दिस इज योर x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड ये y इज इक्वल टू x। पीछे वाले में हमने क्या किया था, x इक्वल्स टू 1 माना था, यहाँ पे मैंने y इज इक्वल्स टू 1 मान लिया। तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो अब आपसे अगर कोई कहता है कि भाई इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो क्या करोगे, एफ ऑफ आर कॉमा थीटा डी थीटा लिख लोगे। ठीक, अब आपने क्या करना है, अब थीटा तो हमको दिख रहा है ना, देखो थीटा की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन कितना एंगल बना रही है, π/4 बना रही है ना एक्स एक्सिस के साथ में, y इज इक्वल टू 0 के साथ लाइन में, तो π/4 और ख़त्म कहाँ हुआ है थीटा, देखो π/2 पे ख़त्म हो गया है जाके। अब अगर हम बात करेंगे स्ट्रिप की यानी r की लिमिट की, तो वही करना है, ओरिजिन से हम एक स्ट्रिप ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे देखो। ठीक है, अब ओरिजिन पे तो x और y दोनों 0 होता है, तो हमारा r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू 1 और y क्या होता है हमारे पास पोलर फॉर्म में, r साइन थीटा, तो r क्या आ गया हमारे पास, कॉसेक थीटा आ गया ना। तो बस r की लिमिट क्या हो गई, 0 से कॉसेक थीटा, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डी थीटा हो गया, r dr डी थीटा। बस देखो यहाँ पे भी निकल गया। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कहाँ से एंगल शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, और उसके बाद में हमें क्या देखना है, आर के लिए हम एक स्ट्रिप ड्रॉ कर देंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे हमें चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आर और थीटा की लिमिट निकालने में हेल्प कर सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगर सपोज हमारे पास एक सर्कल अगर मैं आपको देती हूँ कुछ ऐसा, ओके लगता है इसको ड्रॉ ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज हमने ये एक लाइन ड्रॉ करी, ये हमारे पास y एक्सिस है, फाइन, एंड देन वी हैव ड्रॉन आर x एक्सिस, ये रही। और सर्कल आप सब ने तो काम किया ही होगा सर्कल के साथ। ठीक, तो सपोज मैं उसका क्या कर रही हूँ, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पार्ट है वो चूज़ कर रही हूँ। ठीक, तो मतलब आपको क्या दिया है, x इज इक्वल टू 0 दिया है, y इज इक्वल टू 0 कर्व दिया है, और आपको सर्कल दे दिया है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दे दिया है, और एक लाइन आपको दे दी है जिससे बाउंड हो रहा है ये रीजन, और वो लाइन क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये लाइन हो गई आपके पास एक्स इज इक्वल्स टू ए। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द रीजन विच इज़ बीइंग बाउंडेड। अब अगर आप इसको कार्टेशियन में करते हो तो आपको पता है पैरेलल टू अगर y ड्रॉ करोगे तो y 0 से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे जाएगा, y के पैरेलल करोगे तो 0 से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे काम लेंगे किसका, पोलर फॉर्म का। तो सपोज आपके पास कोई फंक्शन दिया था, उसको आपने इस तरीके से चेंज कर लिया। अब थीटा देखो, इनिशियल यहाँ पे तो थीटा आपके पास कितना है, 0, और यहाँ पे थीटा कितना है आपके पास, कितना, π/2। तो थीटा की तो लिमिट समझ आ गई भाई कि 0 से π/2 जा रही है। अब r के लिए आपने क्या करना है, आप एक स्ट्रिप ड्रॉ करोगे। ठीक है, r के लिए तो स्ट्रिप ड्रॉ करनी ही पड़ेगी हमको। तो ये ओरिजिन पे तो क्या है, r की वैल्यू 0 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो इस सरफेस पे गया है ना आके, सॉरी इस कर्व पे गया है आके, तो अब इस कर्व की इक्वेशन से, पीछे हमने देखा ना, इस कर्व की इक्वेशन से हमने r की लिमिट निकाली। ठीक है, फिर हमने देखा इस कर्व पे r की स्ट्रिप गई थी तो हमने यहाँ पे, अब इस वाले केस में r की स्ट्रिप इस पे ख़त्म हो रही है तो यहाँ से निकालेंगे, वो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको पता है ये हमारे पास x r cos थीटा होता है, y हमारे पास r sin थीटा होता है, फाइन। तो हमारे पास ये क्या आ गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस a चूज़ करेंगे हम, क्योंकि रेडियस तो हमारे पास a ग्रेटर देन 0 ही है ना यहाँ पे। तो बस r की लिमिट क्या आ गई, 0 टू a, इस तरीके से है। तो आपने आज तक जो देखा था ना सर्कल में हमेशा हम रेडियस तक ले जाते, वो एक्चुअल में इस लॉजिक से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम जो लिमिट है वो निकालने की कोशिश करते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो पोलर फॉर्म का एक सेशन अलग से मैं बनाऊंगी, वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 टू a, देन यू हैव 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड यू हैव y स्क्वायर, देन हेयर यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम समझ लेते हैं। उसके बाद पोलर फॉर्म का जो अलग से एक सेशन लूँगी मैं, जहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर दूँगी रिलेटेड टू पोलर फॉर्म। ये क्वेश्चन दिया था। अब देखो, अगर हम इसको कार्टेशियन में करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है,
सो व्हाट वी विल डू, वी विल सी ओके यहाँ पे जो लिमिट्स दी हैं वो क्या है. x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब अगर आप इसे देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिख रहा है ना. क्या समझ आया कि ये तो एक सर्कल की बात हो रही है. ठीक है, तो बस हम ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पे देखो क्या है, दिस इज आर एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक, ये y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल्स टू a एक लाइन भी बोल दी गई है और ये सर्कल बोल दिया गया है. इनसे ही तो बाउंड हो रहा है. देखो आप x कहाँ से गया है, लेफ्ट टू राइट 0 टू a, y कहाँ गया है, बॉटम टू टॉप a. मतलब दिस इज आर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. अब ये प्रॉब्लम देखना कितना आसान हो जाएगा, है ना. वाई स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो वो आर ही बन जाएगा. डी एक्स डी वाई क्या है, आर डी थीटा. थीटा की लिमिट अभी पीछे ही समझाई है मैंने, कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से π/2. और आर कहाँ से कहाँ समझाया मैंने अभी आपको, 0 टू a चला जाएगा इस केस में. ये बन गया हमारे पास. ठीक, अब हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है इसको. तो यहाँ पे देखेंगे हम, क्योंकि दोनों की लिमिट इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर है, तो थीटा फ्रॉम 0 टू π/2, और यहाँ हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ क्या लिख लेंगे 0 टू a एंड r की पावर 4 dr. अब आपको याद करो, मैंने एक सेशन लिया हुआ है ट्रिक्स ऑन इंटीग्रल कैलकुलस पे, वहाँ मैंने आपको वॉलीज फॉर्मूला की एक ट्रिक बताई हुई है. अब जिनको नहीं पता है वो जाके उस सेशन को देखो, तो चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और अगर नहीं देखा है तो फिर भाई आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखो, फिर आप सारी चीज़ें करते रहो. मैंने सिखाया है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, लिमिट 0 टू π/2 है, तो ट्रिक लग जाएगी 2 1, और पावर साइन की क्या है, इवन है, तो π/2 आ जाएगा यहाँ पे. और ये r टू दी पावर 5/5, यहाँ देखो 0 टू a. आंसर क्या आ गया हमारे पास, a टू दी पावर 5. ठीक है, पाई आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. देखो आप, ठीक है, क्योंकि ये π/2 का 2, और ये पहले से हमारे पास 1/2 जो है, और ये 5, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 20. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 20. अब देखो कार्टेशियन से करते तो पता नहीं कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में. ठीक है, सो एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज 0 टू 1, देन वी हैव x टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x minus x square, and then here we have x square plus y square dx dy. ओके, अब इस क्वेश्चन को भी देखो, कर सकते हैं हम लोग इसको कार्टेशियन से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल सा हम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे कि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा. बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सर्कल है. कैसे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, y is equals to x, then we got y is equal to square root of 2x minus x square. यहाँ देखो ये क्या बना, y square then plus x square minus 2x, तो प्लस माइनस 1 कर दिया. अब देखो ये क्या बन गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये बन गया सर्कल. और सर्कल के केस में हमेशा आसान होता है कि अगर हम यूज़ कर लें किसका, पोलर फॉर्म का, तो ये हमारे पास सर्कल बन गया. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. बट यहाँ पे खास बात क्या है, खास बात ये है कि जो अपना एक्स है, जो सर्कल है, उसका जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है, सेंटर जो है वो हमारे पास 1,0 है और रेडियस 1 है. तो अभी इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो हम वाई एक्सिस बनाएंगे अपनी, वो यहाँ से कहीं से जाएगी. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. अब क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस बन गई है, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो अपने पास कुछ ऐसी बन जाएगी लाइक दिस. ठीक, तो यहाँ पे अब क्या पता चल रहा है हमको, ये जो पॉइंट होगा वो 1,0 होगा क्योंकि सेंटर 1,0 है. ये 2,0 होगा क्योंकि रेडियस अपने पास कितनी है, रेडियस है अपने पास 1. अब लिमिट्स को जरा देखो, x की लिमिट बोली है 0 टू 1. ठीक है, x की लिमिट 0 टू 1 है, और हमारे पास क्या बोला है कि जो हमारे पास y की लिमिट है वो x से इस सर्कल पे जा रही है, मतलब अभी y इज इक्वल टू x हमारे पास एक लाइन रहती है. ठीक, तो उसको हम ड्रॉ कर देंगे. चलो वो भी ड्रॉ हो गई रफली यहाँ पे ऐसे कुछ. ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सारे 0 0 से निकलते हुए जा रहे हैं. ठीक है, अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए क्योंकि वो हमें ज़रूरी है, बिना उसके हम काम नहीं कर सकते कुछ. तो व्हाट वी विल डू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट करेंगे,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर. So 2x x square is equals to 2x. It means x square is equal to x. We are getting x is equal to 0 and 1. तो मतलब एक बार यहाँ इंटरसेक्ट करेगा और एक बार यहाँ 1 1 पे इंटरसेक्ट करेगा, जो बेसिकली आप कह सकते हो कि आपके पास जो सर्कल था उसका सेंटर है यहाँ पे. तो अब x की लिमिट 0 to 1, y की x टू सर्कल, मतलब ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है जिसकी वो बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझनी है पोलर फॉर्म के केस में. यहाँ क्या समझना है, लिमिट्स के बारे में. अब देखो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ π/4 का एंगल बनाती है, और x इज इक्वल टू 0 भी डोमेन का पार्ट है, और x इज इक्वल टू 0 लाइन कितना एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ π/2. तो पोलर फॉर्म में ये तो हो गया भाई कि जो थीटा की लिमिट है वो π/4 से π/2 जा रही है. लेकिन अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है r की लिमिट. और r की लिमिट कैसे निकलेगी, ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे भाई अपनी r के लिए. तो r के लिए जब आप स्ट्रिप ड्रॉ करोगे तो वो देखो वो इस सर्कल पे ही तो जा रही है ओरिजिन से. तो ये तो क्लियर हो गया कि r इज इक्वल टू 0 2 जा रही है, बट सर्कल पे जा रही है. एक तो डायरेक्ट तरीका मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब कभी भी सर्कल का जो सेंटर है वो शिफ्ट हो जाए, कल वाली क्लास में भी बताया था, तो r इज इक्वल टू डी कॉस थीटा की हेल्प लेते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे बना है. y एक्सिस पे होता तो साइन थीटा करते हैं. जहाँ पे d डायामीटर है, अब इस सर्कल का डायामीटर कितना है 2 कॉस थीटा. तो r की लिमिट 0 से 2 कॉस थीटा जा रही है. ठीक, और बाकी क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो आर स्क्वायर हो गया. यहाँ पे डी एक्स डी वाई आर डी थीटा. ऐसे कर सकते हो. दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अब तक जो हम करते आ रहे हैं, कौन से कर्व पे गया है स्ट्रिप जो है वो कहाँ गई है, इस वाले कर्व पे गई है. किस पे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्या कर्व है ये हमारे पास गिवन था, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. जो आपने सीखा है वैसे ही रख दो. आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 2r कॉस थीटा इक्वल टू 0. तो मतलब बेसिक भी मैं बता रही हूँ कि आया कहाँ से. तो ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट ये इक्वेशन जो है वो रख दी है. अब यहाँ देखो ये तो आर स्क्वायर दे देगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये ऐसा बन गया. और अब आप देखो r कॉमन ले लो तो r माइनस 2 कॉस थीटा बन रहा है. देखो r की दो वैल्यूज आ रही हैं, r इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा. तो ऑब्वियसली r इक्वल टू 0 मतलब कहाँ पे, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, और r इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा मतलब यहाँ बात कर रहे हैं. तो वहाँ से भी लिमिट आ गई. ठीक, अब हमें सॉल्व करना है π/4 से π/2, और यहाँ क्या बन जाएगा, r क्यूब था तो r टू द पावर 4/4 एंड दिस केम आउट टू बी 0 to 2 कॉस थीटा. देन यहाँ पे क्या है हमारे पास डी थीटा. और अब इसको आई थिंक आप सब लोग सॉल्व कर सकते हो. क्या आएगा ये 2 की पावर 4, तो वो क्या बनेगा हमारे पास 16, तो 4 आ जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा. राइट. सो इस क्वेश्चन में मेन था हमारे पास लिमिट निकालना, विच आई हैव टोल्ड यू. ऑलवेज ड्रॉ अ स्ट्रिप. देखो वो स्ट्रिप कहाँ से शुरू होके कहाँ ख़त्म हो रही है, एक बार वो समझ आ जाएगा तो आप पोलर फॉर्म की लिमिट्स निकाल लोगे. तो बस ध्यान ये रखना है कि अगर ओरिजिन पे सेंटर है तो आप डायरेक्ट अपना कर्व की इक्वेशन यूज़ कर सकते हो वहाँ से, मतलब r जो है वो 0 to रेडियस रख सकते हो. बट अगर नहीं है तो फिर आपको r इज इक्वल टू डी कॉस थीटा यूज़ करना है, और वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है. अब आई होप ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे. अब ये मत कहना कि नहीं मैम ये हमसे सॉल्व नहीं होगा, आप सॉल्व कर दो. ठीक है, तो क्योंकि कुछ करना नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान है. क्या करना है आपको, बस इसे चेंज करना है. ठीक है, r इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा गई थी लिमिट हमारे पास. ओके, ऐसा कुछ बन गया. अब यहाँ पे बहुत सिंपल था कि आप इसको ब्रेक कर दो, है ना. इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, देन 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर. 4 बनेगा यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि 2 आ जाएगा, वो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर यहाँ पे आप अपना फॉर्मूला लगा दो, स्क्वायर ओपन कर दो और आ जाएगा. ठीक है, तो दैट is not difficult. Our point here was to understand how we are finding out the limits. Okay, so I hope I have made this polar form a little easier for all of you.
So we will do a lot of the questions are still there that I have to discuss with all of you, but that I will discuss in the next lecture. And in the next lecture I'll cover all the questions, whether these questions are from any of the book which I'll give you or the previous year questions. I will discuss all, so that in one lecture only you get all the questions related to polar form, so that in future whenever you have to just go through the questions of the polar form, you can watch that lecture. Okay, thank you so much.